Shivam, now let's talk about the most important part of this year's video. What are the changes? Like, what has changed this year that people need to know and जो ज़्यादातर लोगों को affect करेगा. Hi everyone, welcome back to our channel. This is Akshit and I am coming again with the very important video as every year. Today I have Shivam, and you guys already know who Shivam is. So, because if you don't know, then I am pretty sure you're not either serious about taxes or you just landed in Canada. So, let's introduce Shivam. Hey, Shivam, how's it going? Hey, how are you, Akshat? Everything is good with me. Nice, nice. So a lot of people know who follow me from like few years that I have been working with Shivam for my personal taxes and my business taxes. So every year I try to bring him on the podcast on the channel so that he can educate people about taxes. And if you guys want to reach Shivam, तो नीचे आपको description पे first link मिल जाएगा and that will take you to his WhatsApp or his team's WhatsApp. तो वहां पे जाके आप मैसेज कर सकते हो. He will get to you within 24 hours if you have like personal taxes or company taxes, or अगर आपको कुछ भी HST number या कुछ भी लेना है regarding taxes, he will definitely guide you. So Shivam, tell us a little bit about yourself, your journey and your company a little bit. या हमारी जो कंपनी है इट्स टैक्स मोबाइल 8 साल पहले हमने खोली थी एंड द पर्पस वाज टू ऑफर अफोर्डेबल सर्विसेज वेरी कन्वीनियंटली. तो हमारी जो कंपनी है वर्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और हमारे क्लाइंट्स नॉट ओनली इन ऑन्टेरियो हैं बट दे आर ऑल ओवर द कंट्री. सो वी सर्विस द एंटायर कंट्री. हम विद इन 24 आवर्स सब लोगों को कॉल करते हैं डिस्कस करने के लिए उनके रिजल्ट्स, और हम सब कुछ $50 के अंदर में निपटा देते हैं उन लोगों के लिए. एंड आई एम थैंकफुल टू से कि जब हमने पहले ये कंपनी शुरू की थी हमारे पास सिर्फ 150 क्लाइंट्स थे, बट 7-8 years later नाउ हमारे पास 10,000 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं एंड वी आर लुकिंग टू कीप एक्सपेंडिंग. और हमने बहुत सारे चेंजेस करे हैं इस साल ताकि हमारे क्लाइंट्स को और स्मूथर सर्विस हम दिलाएं. आवर कस्टमर सर्विस टीम इज़ बिगर. Our more tax professionals are there, and the training is superb, and even our software is very well to take on more clients now. Perfect. No, that's amazing because I have seen your journey personally because I came to Canada 2018. So मैंने पहली बार 2019 में फाइल किए थे शिवम के साथ taxes, and a friend of mine introduced me to him, and since then I have been with him. I have company that I file taxes for with Shivam, so I know like he has been with with my journey, my wife's journey, and obviously anybody who I know, because I believe, Shivam, let me start on this. I think trust is a very important factor when it comes to taxes, and because you want to make sure that you get the most when it comes to like returns. A lot of people want to get max tax return, and then some people wants to get benefits. Some people want to make sure that everything is logged properly, all the expenses and everything when it comes to business. So let's start. So today the video is going to be more like how taxes work, क्या क्या चेंजेस आए टैक्सेस के बारे में, क्या चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए इफ़ यू आर planning to basically file your taxes, which everyone will be filing the taxes, because that is not optional, that is mandatory. So you have to file taxes, so it's better to learn from the the best who's in the business for like last 8 years, and he can teach you how it works. So Shivam, yeah, now it's your platform, so go ahead. या तो पहली चीज़ है कि हाउ डू टैक्सेस वर्क, राइट? कनाडा में पर्सनल टैक्सेस के लिए 4 टैक्सेस होते हैं. पहला और दूसरा हमारा फेडरल और प्रोविंशियल, और ये दोनों टैक्सेस गवर्नमेंट के लिए होते हैं जो इन पैसों के साथ कंट्री को चलाते हैं. तीसरा टैक्स है हमारा कनाडा पेंशन प्लान प्रीमियम, जो आपके पेंशन रिटायरमेंट के लिए होता है. और फिर आखिरी में एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस की भी प्रीमियम्स होती है जिसके लिए कवरेज मिलती है ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट. अब ऐसा है कि जब भी आप किसी के साथ काम करते हो, आपके एम्प्लॉयर आपसे ये 4 टैक्सेस हर पे चेक से ले लेते हैं और फिर गवर्नमेंट को आपकी बिहाफ दे देते हैं. और जब साल ख़त्म हो जाता है एक T4 मिलता है जिस पे समरी बनती है कि कितना इनकम बनाया और कितना टैक्स पे किया. तो हमारा जॉब है बस देखने के लिए कि ज़्यादा टैक्सेस दिए या कम. और इस कैलकुलेशन में बहुत सारे क्रेडिट्स और डिडक्शंस का यूज़ होता है, which we will be talking about shortly. And जब डिटरमिन हो जाता है कि ऐसे मान लो कि किसी ने कुछ ज़्यादा ही टैक्सेस पे कर दिए तो फिर उनको रिफंड मिलता है, और अगर उन्होंने कम टैक्स भरा
तो फिर वो डिफरेंस गवर्नमेंट को लोगों को देना पड़ता है। Right. That makes sense. So, Shivam, जैसे कि like we all come as a student, right? Like all the people who follow me, at least they even might have come as immigrants. But let's take an example of just a student. So, what are the things that are different when it comes to a student or someone who just starting or is not earning full time? या तो देखो, अच्छी बात ये है कि कनाडा में अगर आप 18,000 से कम बनाते हो, आपको ऑलरेडी क्रेडिट्स मिलते हैं रहने के लिए और काम करने के लिए, जो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स ज़ीरो कर देते हैं। तो फिर जो भी टैक्स आप देते हो उस इनकम तक, वो सारा टैक्स यूजुअली वापस रिफंड में मिल जाता है। अब अगर मान लो कि कोई 18,000 से ज़्यादा बनाता है और स्टिल गोइंग टू स्कूल, अच्छी बात ये है कि ट्यूशन एक टैक्स क्रेडिट भी होता है, तो इट अलाउज़ यू टू मेक इवन मोर मनी। तो अगर कोई 25,000 30,000 बना देता है, तो फिर ट्यूशन क्रेडिट्स फिर यूज़ हो जाते हैं 18,000 की इनकम के बाद, ताकि टैक्स कम हो जाए और फिर वंस अगेन रिफंड सबसे मैक्सिमाइज़ हो जाए। तो स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत बेनिफिट्स होते हैं इनिशियल कुछ सालों में जब वो स्कूल जाते हैं। इट अलाउज़ देम टू मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड इवन इफ लेट्स से 18,000 से कम बनाते हैं या इतना नहीं बनाते वेयर दे कैन नॉट यूज़ द ट्यूशन क्रेडिट्स। अच्छी बात ट्यूशन क्रेडिट्स की ये होती है कि ये कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो फिर इवन फ्यूचर में अगर ज़्यादा पैसा बनाएँगे और ट्यूशन क्रेडिट्स कभी यूज़ ना किए हो, तो फिर उन सालों में भी वो सेम क्रेडिट्स यूज़ कर सकते हो। आई सी या मुझे याद है क्योंकि आई थिंक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई कलेक्टेड ऑल दोज क्रेडिट्स और जब मैं वर्क परमिट पे आया था आई रिमेंबर जब पहले साल मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा था बिकॉज ऑल दोज क्रेडिट्स वर एक्यूमुलेटेड और उसके वो ही उन्होंने ही टेक केयर कर दिया था राइट समथिंग लाइक दैट सो ये जो क्रेडिट्स होते हैं जस्ट ब्रीफली लाइक कैसे होते हैं लेट्स से अ स्टूडेंट राइट नाउ पेज अराउंड let's just say $20,000 in fees like every year. So अगर हम एक साल की बात लेके चले $20,000 वो फीस का पे करता है. So is there a set criteria कि कितने क्रेडिट्स उनको मिलेंगे या फिर it's different for different people? देखो, फेडरल टैक्स होता है और प्रोविंशियल टैक्स होता है। और अगर मान लो कुछ प्रोविंसेस में लाइक ओंटारियो, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे बस एक फेडरल क्रेडिट मिलता है और वो क्रेडिट 14.5% का होता है। अब ऐसा है कि अगर कोई बीसी में रहता हो, तो फिर नॉट ओनली डू दे गेट द फेडरल क्रेडिट, बट इन बीसी यू आल्सो गेट प्रोविंशियल क्रेडिट। तो Hmm. फिर उन लोगों के लिए उनका क्रेडिट थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो इट डिपेंड्स कि व्हिच प्रोविंस यू आर इन, Mm-hmm. but in most provinces it's 14.5%, which is the federal credit, meaning अगर किसी ने 10,000 की फीस भरी हो या 20,000 की फीस भरी हो, तो 1,500 to $3,000 का वो बेनिफिट हो जाता है, टैक्स रिडक्शन हो जाती है जब यूज करना हो। Right. Okay. So that I think that information is very important because a lot of people who might be seeing this उन्होंने पहले taxes file किए होंगे. So ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है because I think कि ये ना सिर्फ आपको मैक्स बेनिफिट के लिए देखना चाहिए बट आई थिंक यू शुड बी एजुकेटेड इनफ नॉलेजेबल इनफ टू अंडरस्टैंड योर टैक्स सिचुएशन और आई डोंट थिंक इट्स लाइक टू कॉम्प्लिकेटेड अगर आप सिंपल भाषा में जैसे आपने समझाया देयर आर 4 टाइप ऑफ थिंग्स दैट गेट्स डिडक्टेड आउट ऑफ द पे चेक सो ये सारी चीज़ें आई थिंक अगर हम देख के चले इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट सो दीज आर वेरी गुड थिंग्स कि अगर आप अपने दिमाग में रख पाओ और हर साल अपना थोड़ा सा उस हिसाब से देख देख के रखो कि क्या चीज़ें आपको बेनिफिट ज़्यादा दे सकती हैं नाउ कमिंग टू द नॉन स्टूडेंट्स जैसे कि आपने स्टूडेंट्स की बात करी लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट आर डिफरेंट इन पीपल हु आर नॉट स्टूडेंट्स लेट्स से मी सो क्या चीज़ें डिफरेंट होंगी या तो एक और चीज़ है इस टॉपिक के बाद दैट आई वांटेड, और इस टॉपिक के लिए दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट रियली इज कि नॉट ओनली क्रेडिट्स होते हैं ट्यूशन के लिए, बट देयर इज आल्सो क्रेडिट्स फॉर अदर थिंग्स एज वेल। तो अगर कोई डोनेशंस करता हो, किसी के मेडिकल एक्सपेंसेस हो, किसी के इंटरेस्ट ऑन स्टूडेंट लोन्स हो, किसी के इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लोन्स हो, किसी के वर्क फ्रॉम होम का सिचुएशन हो, किसी के RRSPs हो, तो these are all different credits and deductions that help reduce the taxes as well. And अगर कोई नॉन स्टूडेंट हो, हम्म usually we can assume कि वो full time job कर रहे हो and they are earning a lot more than $18,000. और अगर स्टूडेंट भी ना हो, then they probably don't have tuition credits, right? तो उनके लिए the best thing they can possibly do is invest into
RRSPs. This is a retirement or registered retirement savings plan. और इसमें जब कोई पैसे डालते हैं तो फिर जो इनकम होती है वो कम हो जाती है, और जब इनकम कम हो जाता है फिर टैक्स का कैलकुलेशन भी कम हो वो जाता कम रिजल्ट हो जाता है, तो इसका मतलब रिफंड भी बढ़ जाता है। तो in simple terms, RRSP is probably the number one thing that you could do अगर आप स्कूल नहीं जाते and you're past that point. Um, RRSP में जब पैसे डालते हो, अच्छी बात यह है कि you have until the end of this month, end of February, to contribute, and then वो 2025 में it will count, so which है। is really good. Um, then I would say that if there's RRSP, the downside is कि जब आप पैसे RRSP से निकालते हो, वो सेम चीज़ जिसको आपको डिडक्शन मिली थी वो इनकम में डल जाती है और फिर आपको उस पे टैक्स देना होता है, तो वो इफ़ेक्ट रिवर्स हो जाता है। तो यूजुअली जब भी कोई आरआरएसपी में पैसे डालते हैं, वो लॉन्ग टर्म रीज़न्स के लिए डालते हैं। अब अच्छी बात ये है कि कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने एक न्यू प्रोग्राम शुरू किया था व्हिच इज़ कॉल्ड एफएचएसए और फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट। आरआरएसपी की तरह ही चलता है जहाँ पे आप पैसे डाल सकते हो, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, और फिर वो जो डाउनसाइड मिलती है आरआरएसपी के साथ, जब पैसे निकालते हो और इनकम में इंक्लूड करना होता है, वो भी गायब हो जाता है। तो दे डोंट नीड टू इंक्लूड इन द इनकम एज लॉन्ग एज वो पैसे घर खरीदने के लिए आप यूज करते हो। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पीपल that are coming to Canada. As we all know, economy is very down, and बहुत लोगों का सपना होता है कि जब आते हैं कि घर खरीदना हो, तो this is the fastest way to save for a down payment on a house, and luckily it's through taxes that you do that as well. So No, yeah. that's really good. I remember I invested in FHSA, and before investing in FHSA, I asked Shivam first, ki, how should I do it? Because I have like I have to buy a house next year. जब मैंने लेना था घर, and Shivam suggested कि ऐसा ऐसा करो, and then I was able to kind of take that money out, and I didn't have to pay that money back. I used that money for my down payment. So a lot of people might know already because I have already made a video on that part of the journey. But just so you know, this is a very very important account, and FHSA I think is the best investment account for people in Canada who are looking to get house, right? Yeah, I would say also कि अच्छी बात एफएचएसए के साथ ये है कि देखो, आई नो दैट आर सो लुक विद आरएसपीज आपके पास फरवरी तक टाइम है कंट्रीब्यूट करने के लिए। एफएचएसए कैलेंडर ईयर बेसिस पे चलता है, मीनिंग कुछ लोग जो अभी इस वीडियो को देखेंगे उनको लगेगा कि भाई हमारा डेडलाइन तो गया 2025 के लिए, तो हम क्या करेंगे अब, मेरे को 2025 यू नो आई वांट टू यूज इट फॉर दैट। सो विद आरएसपीज अच्छी बात ये है कि यू कैन ऑलवेज पुट द मनी इन द आरएसपी, डिडक्शन 2025 साल के लिए मिल जाएगा, और फिर अगर एफएचएसए में ट्रांसफ़र करना है पैसा, वो टैक्स फ्री ट्रांसफ़र हो जाता है। तो फिर दैट्स अ रियली इम्पोर्टेंट पॉइंट टू कि यू डोंट हैव टू मिस आउट ऑन द बेनिफिट ऑफ एफएचएसए। अगर सब लोगों को लग रहा है कि बस आरआरएसपी में डालते हैं और फिर उनको समझ में आ जाए कि एफएचएसए वाज़ अ बेटर ऑप्शन, they can still take that money and put it into the FHSA, which is really good. Right. No, definitely. That's a very good point. I think FHSA and RRSP works in correlation, right? I think you can move Yeah. money in between without any penalties, as far as I know. And Yeah. so I don't think TFSA is related to the taxes because it is like basically whatever you put in, as long as you're in the range, it is completely out of your tax picture, right? It doesn't even get Yeah. counted. Exactly. So these are all the investment accounts, Mhm. including the TFSA. And you're really correct. To make it very simple, TFSA में जब पैसे इन्वेस्ट करते हो, वो पैसे पे जो इन्वेस्टमेंट इनकम आप अर्न करते हो, उसका कुछ टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती। बट अनलाइक आरआरएसपी कुछ टैक्स डिडक्शन भी नहीं मिलता उसका। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स एक चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे नॉन स्टूडेंट्स जो आते हैं यहाँ पे, दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एज वेल, और दे बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। आपका भी एक बिजनेस है, तो इट्स द सेम थिंग, राइट? तो उन लोगों के लिए इधर वो अपने पर्सनल नाम पे ये काम करते हैं या कॉरपोरेशन खोल देते हैं, तो उन चीज़ों में भी हम बहुत मदद करते हैं लोगों की। और अच्छी बात सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का ये है कि वो एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। उनका जो रेंज है एक्सपेंसेस क्लेम करने का, इट्स मच more than somebody that works on payroll. So that's also one thing that is there too, that there's a lot of self-employed people too, or I would always say
self-employed लोगों को तो 100% they should be consulting somebody in accounting to make sure वो सही choices they are making, you know, whether they should have a corporation or be doing it under personal. करेक्ट एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस कंफ्यूजन कि बिजनेस का मतलब ये नहीं है, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये नहीं है यू आर एक्चुअली रनिंग अ फुल फ्लेज्ड बिजनेस विद एम्प्लॉयज. इवन इफ यू आर डूइंग उबर, दैट्स आल्सो लाइक उबर और एनी अदर थिंग्स, दैट इज आल्सो यू नो दैट आल्सो कम्स अंडर सेल्फ एम्प्लॉयड. तो अगर कोई भी पैसा आप ऐसे बना रहे हो जिसपे आप ऑलरेडी टैक्स नहीं दे रहे हो, राइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यू कैन put the expenses against those income brackets that you have earned throughout the year at the end of the year, correct? Like कोई भी Yes. चीज अगर आपको expenses है, you can, as long as they're legit and you have the receipts, obviously you are good to basically counter those expenses. या जैसे मान लो अगर आप 50,000 बनाते हो, 25,000 के एक्सपेंसेस होते हैं, तो फिर बचा क्या रहा? 25,000, राइट? तो उस 25,000 पे ही आपको टैक्स देना पड़ता है, नॉट द एंटायर 50,000. और बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं जो we're able to claim a lot of expenses for those people, other than the things I've already mentioned. So they get access to the RRSPs, the medical expenses, and all those other credits as well. Correct. No, definitely 100%. So, Shivam, now let's talk about the most important part of this year's video. What are the changes? Like, what has changed this year that people need to know, and जो ज़्यादातर लोगों को affect करेगा. So, what are those Yeah. changes? So there's a bunch of changes. So the one thing I want to say, which is a really important change, is कि जो federal tax rate है वो decrease हो गया है on the first tier. तो पहला जो 57,000 आप कनाडा में बनाते हो, instead of paying 15%, government ने 14.5% rate बना दिया, and going into 2026, now it's going to become 14% for the entire year, which is also a very big change क्योंकि बहुत सालों से it's been 15%. Hmm. So that's a very big change. Number two is कि I want to talk a little bit about benefits. तो पहली चीज़ ये है कि वो जो कार्बन रीबेट बेनिफिट था जो सब लोगों को कुछ सालों से मिल रहा था, गैस प्राइसेस जो इंक्रीज हुई हैं पिछले कुछ सालों से, उसका जो रीएम्बर्समेंट था, ये बेनिफिट कार्बन रीबेट हैज़ नाउ बीन एलिमिनेटेड. अब अदर बेनिफिट्स हैं अभी तक. देयर इज द जीएसटी एचएसटी टैक्स क्रेडिट, जो टैक्सेस आप पे करते हो चीज़ें खरीदने के बाद कनाडा में, उसका रीएम्बर्समेंट ये बेनिफिट होता है. ये अभी भी चल रहा है, बट देयर इज अ प्रपोजल कि ये भी रिप्लेस हो जाएगा, नॉट एलिमिनेटेड बट रिप्लेस हो जाएगा विद समथिंग कॉल्ड द ग्रोसरी बेनिफिट. और ये ग्रोसरी बेनिफिट अगर अप्रूव हो जाए एंड इट बिकम्स अ रियल थिंग, जुलाई में इंस्टेड ऑफ a single person getting $500 GST, they will be getting $1,000 instead Oh, for the nice. grocery rebate. So that's another change I want to talk about. Other than the GST credit, कई सारे और बेनिफिट्स भी होते हैं, लाइक प्रोविंशियल बेनिफिट्स. अगर आप ऑन्टेरियो में रहते हो तो फिर एक रेंट का बेनिफिट होता है, ट्रिलियम बेनिफिट. Hmm. सिमिलरली बीसी में भी रेंट का बेनिफिट है, मैनिटोबा में भी रेंट का बेनिफिट है, एंड इन अदर प्रोविंसेस लाइक सस्कैचुआन, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग के भी सेपरेट तरीके के बेनिफिट्स होते हैं. सो इट डिपेंड्स व्हिच प्रोविंस you're in, and there's stuff for that. Also, I want to mention कि इस साल medical expenses के साथ there's been a couple of changes too. So कई सालों से a lot of people are spending money on fertility treatments, for having kids. तो वो new changes आ गए हैं कि now they're allowed to be claimed, and in some provinces you can claim up to $5,000. In some provinces you can claim up to $10,000. So those are some new changes as well. Another thing I could say is, अगर हम देखें Saskatchewan में भी एक benefit है, which is really nice. It's called Graduate Retention Program. तो कोई जो लोग graduate होते हैं स्कूल से, उनका एक सेपरेट ग्रेजुएशन का ट्यूशन बेनिफिट भी होता है. और अच्छी बात ये है इस बेनिफिट के साथ, which is they don't even have to have gone to school in Saskatchewan. अगर कोई ऑन्टेरियो में स्कूल जाता है फॉर एग्जांपल और सस्कैचुआन बाद में मूव हो जाता है, they can still use this extra benefit, and it's really a lot. Maximum I think is like up to 6,400 for some Wow. people. There's also Northern Canada benefits. So अगर कोई Northern Canada में रहता हो, so there's Northern residence deduction for people that are living in those areas where it's not very populated. तो हर दिन जब रहते हो उस
हर दिन का एक बेनिफिट मिलता है। तो ये बहुत सारे ये बेनिफिट्स हैं और इनमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस साल व्हिच आई वांटेड टू रियली लेट यू नो। 100%, और आई थिंक दिस इज़ वेरी मतलब रिलेटेबल to everyone living in Canada, क्योंकि a lot of provinces are there, all the provinces have different rules and different regulations, so जो भी जहाँ पे रह रहा है, so they have their own benefits, and I think it's best to like नो एंड शिवम को मैसेज करके आप जान सकते हो कि कैसे क्या क्या बेनिफिट के लिए आप एलिजिबल हो, रेदर देन अज्यूमिंग, क्योंकि समटाइम्स वी ऑल्सो लाइक, आई रिमेंबर लास्ट ईयर आई गेस कोई बेनिफिट आया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट पीपल वर लाइक गोइंग क्रेजी कि वेदर आई बी एलिजिबल फॉर द एक्स्ट्रा $500-800, बट लॉट ऑफ पीपल वर नॉट एलिजिबल एक्चुअली। सो उस टाइम में आई थिंक इट्स बेस्ट इफ यू हैव एन अकाउंटेंट हु is basically ready to answer you whenever you basically have questions. और वो चीज़ों के लिए मेरे को लगता है कि I message Shivam a lot. Like Shivam might, testify to that I message him a lot about anything. कि I want to make this expense. How should I do it? So ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. And that's why if you are in any province, जहाँ पे आपको थोड़ा सा confusion है कि whether I'll be eligible for this benefit or not, I think it's best to reach out and to any qualified accountant. I personally have Shivam, so I don't need to reach out to all the other people. So that's the thing. But let's move further. जैसे कि आपने बताया बेनिफिट्स के बारे में, नाउ अब बात करते हैं फर्स्ट टाइमर्स। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज टू कम टू कनाडा इन 2018 to 2023, things have changed a little. People have like been coming less now, क्योंकि इमिग्रेशन का थोड़ा सा मतलब इश्यूज आ रहे थे जो कि होपफुली रिजॉल्व हो जाए। बट जो भी नए लोग आए हैं, स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल केम, सो व्हाट आर द थिंग्स दे हैव टू कीप इन माइंड इफ इट्स देयर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर फाइलिंग द टैक्सेस? या लाइक आई वुड से कि अगर अगर कोई कनाडा आते हैं as soon as they land in Canada, benefits की उनको eligibility right away है. That's the number one thing. जैसे मैंने GST credit के बारे में बताया, थोड़े से provincial benefits के बारे में भी बताया, वो benefits शुरू हो जाते हैं from the day you land in Canada. बस उनको apply करना होता है एक application के through, which obviously हम करते हैं लोगों के लिए, और 4-5 महीने के बाद उनको वो benefits मिल जाते हैं. Usually टैक्स फाइलिंग के जो बेनिफिट्स होते हैं वो जुलाई फॉलोइंग ईयर से शुरू हो जाते हैं। मीनिंग अगर हम 2025 के बारे में बात करें, हम इस बारी 2025 की फाइलिंग्स करेंगे तो वो बेनिफिट्स जुलाई से शुरू हो जाएंगे। बट अगर कोई मान लो दिसंबर में आया हो 2025 या जुलाई में आया हो, उनको बेनिफिट्स उसी समय से शुरू हो जाने चाहिए। और उस पीरियड के जो बेनिफिट्स होते हैं फ्रॉम द डे यू लैंड टू जून ऑफ 2026, उस पीरियड के बेनिफिट्स का नाम है वेलकम कनाडा। तो सेम ही बेनिफिट्स होते हैं, सब लोगों को लगता है कि ये सेपरेट कुछ बेनिफिट्स होते हैं जिनका नाम है वेलकम कनाडा, बट रियली इट्स जस्ट न्यूकमर बेनिफिट्स फ्रॉम द डे यू लैंडेड टू जून 2026। इसके लिए टैक्स फाइलिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस एक एप्लीकेशन होती है जो हम सबमिट कर देते हैं। और फिर अगर इफ़ यू वांट द बेनिफिट्स टू कीप कंटिन्यूइंग आफ्टर, तो फिर टैक्स फाइलिंग भी करनी होती है। तो दैट्स व्हाट इट प्रीटी मच इज़, आई वुड से फॉर न्यूकमर्स टू apply for benefits right away. ओके, दैट्स ग्रेट। तो अभी तक हमने आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करी, हाउ टैक्सेस वर्क, और हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। सो कोशिश हमारी यही थी कि इसमें हम कुछ नया आपको बताएँ, जो कि हमने चेंजेस बताए। काफ़ी डिटेल में शिवम ने चेंजेस कवर किए, बहुत ज़्यादा और चीज़ों के बारे में हमने बात करी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक्स। आई नो कि ऐसी चीज़ों में जहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो, टैक्सेस इन्वॉल्व हो, सीआरए इन्वॉल्व हो, people really don't want to make any mistakes. So what are the things basically that might be considered as mistakes, जो कि लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, शिवम? Yeah, the number one thing I would say is कि अगर आप कनाडा आते हो, even if आप एक दिन के लिए आए थे साल में, which is December 31st, 2025, तब भी it makes sense for you to file the tax return क्योंकि आपको वेलकम कनाडा benefits मिलेंगे और फिर टैक्स फाइलिंग के भी benefits मिलेंगे। Number two, I would say that even if आपने कुछ काम नहीं किया हो या स्कूल नहीं गए हो, you can still file the tax return क्योंकि वो जो benefits मैंने अभी describe किए हैं आपको, they are not dependent on how much you make. They're dependent on you living in Canada. So that's another thing I would say. Another thing is कि अगर आप कोई हमने Uber और Lyft के बारे में बात किया था, तो फिर एक HST नंबर होता है जो
वो ऑलरेडी आपसे मांगते हैं रजिस्टर करने के लिए, बट कुछ लोग नहीं करते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एचएसटी नंबर रजिस्टर कर लो, क्योंकि उसके उसके लिए एक सेपरेट फाइलिंग होती है। जो उबर और लिफ्ट ड्राइवर्स पैसे अर्न करते हैं उसमें इंक्लूडेड एचएसटी होता है। वो एचएसटी आपका पैसा नहीं होता, वो गवर्नमेंट का पैसा होता है। तो सम ऑफ दैट मनी हैज़ टू गो टू द गवर्नमेंट, और उसकी फाइलिंग पर्सनल टैक्स रिटर्न फाइलिंग से सेपरेट होती है। तो एक एचएसटी नंबर उसके लिए रजिस्टर करना होता है, और गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है दिस टाइम अराउंड, क्योंकि कई सालों से बहुत लोगों ने ये they've worked around it, but now they're becoming a little bit more strict. So I would say that's very important. And अगर किसी को HST number register करना हो, we do that for people within 24 hours as well. Then I would say not investing into RRSPs, right? RRSPs के बारे में हमने बात किया था, very very important, क्योंकि everything becomes more expensive. You need a return on your money. अगर आप कैश रखोगे और उसका कुछ इस्तेमाल नहीं करोगे, तो फिर उसका वैल्यू कम होते रहेगा। तो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कीप इन्वेस्टिंग द मनी अ लिटिल बिट हियर एंड देयर। आरआरएसपी इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज नॉट ओनली आपको इन्वेस्टमेंट इनकम का रिटर्न मिलता है, बट आपको टैक्स रिटर्न भी मिलता है। तो दोनों तरीके के रिटर्न्स होते हैं। बट अ बिग मिस्टेक दैट आई सी विद आरआरएसपीज इज कि जो लोग पहले साल में आते हैं वो आरआरएसपी में पैसे डाल देते हैं। एंड यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज आरआरएसपी का एक रूल है कि एक कंट्रीब्यूशन लिमिट होती है जो आपको हर साल मिलती है, Hmm. और वो इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हो उस पे जो इनकम रिपोर्ट करते हो उस पे डिपेंड करती है। तो अगर कोई पहले साल में आता है और उन्होंने कभी टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया हो, तो फिर उनका रूम ज़ीरो है। तो अगर आप उसी साल में आरआरएसपी कंट्रीब्यूट करोगे, तो फिर ओवर कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, और ओवर कंट्रीब्यूशन में आपको पेनल्टी देनी होती है और आपको कुछ टैक्स डिडक्शन भी नहीं मिलता। So that's a very important thing and a big mistake that I see usually. Lastly, I would say कि choose a reliable accountant. देखो, मैंने ये जो कंपनी शुरू की थी, मैंने इसीलिए शुरू की थी क्योंकि जहाँ पे मैं पहले काम कर रहा था, वहाँ पे वो काम सही तरीके से नहीं कर रहे थे, और वो कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर रहे थे लोगों को। और इस इंडस्ट्री में बहुत मैंने देखा हुआ है कि अकाउंटेंट्स 100, 200, $300 चार्ज करते हैं और रिजल्ट्स कुछ देते नहीं है। कोई किसी को कॉल नहीं करता डिस्कस करने के लिए रिजल्ट्स, कोई किसी को टाइम नहीं देता, कोई किसी के क्वेश्चंस आंसर नहीं करते, और अगर कुछ गलत हो तो कुछ कर भी नहीं सकते हो। क्या करें अगर कुछ गलत हो गया, राइट? वो तो क्लाइंट तो फँस गया, उन्होंने पैसे दे दिए एंड इट्स गॉन। चूज़ अ रिलायबल अकाउंटेंट। हम वी आर अ कंपनी दैट वी आर ट्राइंग टू डू इट फॉर द पीपल। अगर मैं चाहता, आई वुड हैव रेज़्ड माय प्राइसेस टू माय कंपीटिटर्स अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। बट मेरा गोल है कि सबसे ज़्यादा लोगों को service do, value do, so that they can trust us. And so that's what it should be all about, having a reliable accountant and someone that calls you and discusses you and is like a friend to you. Just like you consider me a friend, right, Akshay? So it's the same thing. I feel like every one of my clients or our clients is a friend of ours. So that's what I would say for the most part. No, 100%. I think mistakes you covered very well. I just have one question, Shivam. Yeah. I think it's my personal question, but I think some people might have it too. So let's say somebody coming to Canada and it's their first year. They can't invest in RRSP, but I believe they can invest in TFSA right away, right? As soon as they can. I mean, as soon as they're 18 and in Canada, I think they can at least invest in TFSA. If somebody is, I'm just asking this because if somebody wants to invest and start, like having something on the side where they can see their money grow, as Shiva mentioned, don't make a mistake of investing in RRSP, but I believe you can invest in TFSA. Correct me if I'm wrong, Shivam, right? I think we can do that. Yeah, so पहले साल में जब आप कनाडा आते हो, you can also do FHSA as well, right? FHSA भी कर सकते हो और also TFSA कर सकते हो, but not RRSP. RRSP. So, and a really good thing is कि अगर आप TFSA का भी एक कंट्रीब्यूशन रूम होता है जो हर साल मिल जाता है, 7,000 के करीब होता है। अब अगर आप दिसंबर को आते हो तो आपको फिर भी 7,000 की कंट्रीब्यूशन रूम मिल जाती है। इट्स नॉट लाइक कि आपको बस 30 दिन की मिलेगी और वो 11 मंथ्स जो आप कनाडा में नहीं थे उसका प्रोरेशन हो जाएगा। तो इवन इफ यू कम जस्ट वन डे इन दिसंबर, आपको फिर भी पूरा कंट्रीब्यूशन रूम TFSA के लिए मिल जाता है। Perfect, perfect. No, I Yeah. think that was it. और मुझे लगता है कि we covered a lot in this, like quick
पॉडकास्ट आई वुड से हमने शुरू से लेकर एंड तक काफ़ी चीज़ें कवर करी। बाकी आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देयर सिचुएशंस, एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप क्वेश्चन पूछ लो अपना नीचे कमेंट में, एंड देन शिवम विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ऑल दोज क्वेश्चंस। और अगर मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, वी माइट कवर दैट क्वेश्चन कंसिडरिंग यू हैव सो मच एक्सपीरियंस एज अ सेपरेट वीडियो। आई थिंक शिवम इज ऑलवेज डाउन टू हैव लाइक information put out। और ये चीज मतलब that's why I personally, like recommend Shivam a lot. Not that this is any sponsored video or I'm getting, like a lot of money in front, but I just feel like Shivam is one of those guys who is always there. His team is always there. If you have any questions, if he doesn't reply right away, I am pretty sure he gets to you within 24 hours, and replies to you, because I know tax season is busy and handling 10,000 clients is no joke. So thank you so much Shivam for spending some time like answering all those questions। मुझे लगता है काफी ज्यादा बढ़िया चीजें हमने बात करी। बाकी अगेन इफ यू हैव एनीथिंग आई विल पुट एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन, और शिवम को रीच करने का फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। So once you click that link, you'll be able to message him directly on WhatsApp and take your process from there। Anything else you want to add, Shivam, at the end of the video? No, I just want to say, Akshay, thank you. आप हमारे साथ, you've been with me strong for so many years, and I really cherish the relationship that we have. And for everybody watching, I just want to say कि I just hope आपको कुछ information मिली ताकि you're able to understand things a little bit better now. My purpose in life is always to provide value, value, value. Uh, it's not about the money. I always say that. It's all about just providing value as much as you can. The money is always secondary. So I'm always here for the people. And I think Akshat and me have the same goal. He's always here for the people as well. So that's why we are really good friends, and we're here to give a lot of information to everybody. Sounds good. Thank you so much, guys. Hope you guys enjoyed, learned something new. And if you have any questions, please put it down in the comments and like the video if you have been here so far. So see you in the next one. Bye, everyone.